Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another amazing day into the markets, and we booked good profits both on the upside move and on the downside move. We booked good profits, but the markets are not, seemingly very good in very good state. And the primary reason is obviously the whole coronavirus situation that has been going around in the country for a while now. The vaccine shortage is still there, and plus. A big announcement was made today that the IPL is being postponed or halted, and the primary reason is that most of the players in the IPL community are getting infected from the coronavirus. जब ये न्यूज आई उसके बाद से तो बहुत जबरदस्त बेरिशनेस हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल ही गई थी. सो द डे वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वी बुक्ड गुड प्रॉफिट्स ऑन द अपसाइड एज वेल एज ऑन द डाउनसाइड. मैं आपके साथ एक दूसरे वीडियो में इस पूरे प्रॉफिट की एनालिसिस शेयर कर चुका हूं. किस तरीके से हमने अपसाइड प्रॉफिट्स को ट्रेल किया, किस तरीके से हमने डाउनसाइड प्रॉफिट्स को ट्रेल किया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए. वो खबर ये है कि लास्ट टू लास्ट संडे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेंबर्स के साथ एक पेड वेबिनार किया था. द चार्जेस फॉर द वेबिनार वर $499. It's a 2.5 hour long webinar on complete analysis, on complete details about technical analysis and how can you actually get benefit by using technical analysis into the stock market as an intraday trader. ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी उस वेबिनार में. Now you must be wondering कि आपको ये वेबिनार मिल सकता है क्या? ये वेबिनार बिल्कुल आपको मिल सकता है, and the best part is ये वेबिनार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है रोरिंग बुल्स की ऑफिशियल वेबसाइट की. वेबसाइट पे जाइए और कोर्सेज सेक्शन में जाइए. कोर्सेज सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वेबिनार फ्री लिंक मिल जाएगी. उस वेबिनार को अटेंड कर लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड सेटअप करना सीख सकें. We have officially partnered up with UPSTOX as a good, since it's a good broking platform, and they have a good user interface with good facilities for members. All you have to do to attend the webinar masterclass for free is that you have to open up a DEMAT account with UPSTOX using the link that has been given on the Roaring Bulls website. तो सारी details आपको website के ऊपर मिल जाएंगी. And now we'll just move ahead and we'll discuss, analyze and summarize that everything that happened into the markets today, and we'll make sure that you understand very well about that levels for tomorrow's trading session. Because आज का जो एनालिसिस वीडियो मैंने आपको प्रॉफिट एनालिसिस का वीडियो जो पोस्ट किया है उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि लेवल्स कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं और लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सीख लेना चाहिए. सो आई होप यूल एंजॉय दिस वीडियो. जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, दिस इज द राइट टाइम माय फ्रेंड. Hit the subscribe button so that you can learn every day about the stock market and how to make money from it. So this is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. So without any further delay, let's quickly jump into the video. Okay, so the most important part that I've already said is that you can just go onto the website. The website is www.roaringbulls.com, and you will be very happy to visit the website. It's a great place to learn. यहाँ पे वेबसाइट पे आने के बाद जब आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये बहुत easily मिल जाएगा. How to get free access to the live webinar masterclass on price action. All you have to do is click the link over here and you can go ahead with the whole process of registering yourself with UPSTOX, and you can then get the free access to the webinar masterclass. So moving ahead, let's quickly jump on to the डेली स्टॉक मार्केट फीड सेक्शन, जहां पे हम पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आपके लिए रोज लेकर आते हैं. एंड वी विल डिस्कस हाउ द मार्केट्स बिहेव, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मार्केट्स टू बिहेव इन सच अ वे, एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो. सो द टाइटल ऑफ माय पोस्ट मार्केट रिपोर्ट इज वेरी क्लियर, एंड it's a little bit humorous, but that is how the markets were today. So if you'll see, up and down and all fall down. So what is next? Is it 14,200 that is going to come next? So why have I written the title up and down and all fall down? We'll go into the charts and we'll discuss why is such title written. First we'll discuss
what all happened in the markets. So looking at the charts, one thing was very clear that there was no major action in Nifty till 1 PM and सुबह के बाद से 1 PM तक कोई मेजर एक्शन नहीं था. सिर्फ हल्का सा अपसाइड मूवमेंट आता रहा निफ्टी के अंदर, बट एक 1 PM के बाद एक एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आया निफ्टी के अंदर और काफी भारी गिरावट आई. व्हाट वाज द रीजन, वी विल डिस्कस अहेड. अगर आप आगे एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी कि इफ यू कंपेयर द मूवमेंट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देन बैंक निफ्टी लुक्ड मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इन कंपैरिजन टू निफ्टी एज पीएसयू बैंक्स स्टिल रिमेन्ड इन ग्रीन. सो दैट वाज समथिंग टू बी लुक्ड इनटू द मार्केट्स. एंड निफ्टी 50 फॉल ऑफ द फर्स्ट 30 मिनट्स वाज रिकवर्ड टिल द आफ्टरनून. पहले 30 मिनट के अंदर जो फॉल आया वो धीमे धीमे रिकवरी हुई थी उस फॉल की पूरे 1 बजे तक, और उसके बाद एक्सट्रीम फॉल आया इंडेक्स के अंदर. वील डिस्कस ऑन द चार्ट्स. एंड निफ्टी क्लोज द डे एट 14496, दैट वाज डाउन बाय 137 पॉइंट्स, अगेन अ डे in red. Okay, so this is this is the kind of bearishness that is available in the markets as of now. But with the help of PSU bank index, the Nifty bank did touch 33,000 levels for a very small period of time. उसके बाद मोरेटोरियम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की जो रिपोर्ट्स या न्यूज आने लगी बाय द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली टू द रिटेल एंड द MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो 3 महीने तक का एक्सटेंशन डिमांड कर रहे हैं. सो दैट न्यूज could have given a good setback, and from there on Nifty fell more than 800 points from the day high and closed the day at 32,270. That was down by 195 points. देखिए, लोन मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट बिजनेस ओनर्स के तरफ से बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है. पहले भी हमने ये सेम चीज देखी थी. अभी वापस लॉकडाउन्स लगते जा रहे हैं और कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है. सो दिस इज अफेक्टिंग लॉट ऑफ आवर बिजनेसेस. Me, you and everyone else who is into the business sector is being affected a lot. So this is one primary reason that Bank Nifty index fell a lot today after 1 PM especially. And another reason that we have just discussed is that COVID is getting worse day by day. The IPL has been suspended as more players in the tournament test positive for COVID-19. This was an important news. Such is the effect of Corona, my friend. अब ये इफेक्ट और डीपली फील हो रहा होगा जब फाइनली IPL जैसा इवेंट भी बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, बिकॉज द कोविड इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर. सो दैट इज समथिंग टू लुक अहेड. एंड एनर्जी स्टॉक्स हैज गेन्ड अ बिट आफ्टर द फ्यूल प्राइसेस वर रेज्ड फर्स्ट टाइम सिंस February 23, since the elections are over. So this has this was supposed to happen sort of thing. And energy stocks like ONGC, BPCL, Hindustan Petroleum and GAIL gained somewhat, not a lot, but yeah, somewhat. And shares of Angel Broking again hit the upper circuit of 20% and closed 12% up for the day. This rally was in expectation of good Q4 results that are to be announced today. So now moving ahead, what I feel is that the important levels to look in Nifty is 14,400, 14,300 zone. That is what you have to look in Nifty, and 32,000 is the zone that we can look in Bank Nifty. That these two zones will be a good support as of now, but support can change and things can change. So intraday levels मैं आपके साथ live market में Telegram पर ही update कर दूंगा. Let's quickly look at the trading profile for the day. How was our trading profile for the day? So we took 2 trades. मैं आपके साथ दोनों ट्रेड्स की कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं एक डिफरेंट वीडियो में. We'll quickly look at it here. 32,600 कॉल ऑप्शन एंड देन 32,800 पुट ऑप्शन. पहली ट्रेड में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, नेक्स्ट ट्रेड में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया. इन जनरल बाय ट्रेडिंग जस्ट 1 लॉट साइज टुडे वी बुक्ड मोर देन 3,750 पॉइंट्स फॉर द डे, एंड इट वाज अमेजिंग डे विद रेड सर्कल मेंबर्स. द बेस्ट पार्ट इज द रेड सर्कल मेंबर्स आर लर्निंग अ लॉट. लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, माय फ्रेंड, because the more you learn, the more you earn, as I keep saying that. So learning has to be your utmost priority. Okay, अब देख लेते हैं सबसे पहले कि इंडेक्स का बिहेवियर कैसा था. निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर अगर हम चल के देखेंगे, सो देयर वर 13 एडवांसेस एंड 37 डिक्लाइंस. इट वाज अ वेरी बेयरिश डे फॉर द इंडेक्स. लेट्स लुक एट द टॉप लूजिंग एंड टॉप गेनिंग सेक्टर्स. इज द FII data out? No, it is not out yet. So let's just quickly look at the top losing and the gaining sectors. So if you look here, the top gainers were, wow, now Nifty PSU Bank is the top gainer here, and
it has gained 3.4% for the day. So this one of the top gainer for the day. Other than that, which sector has gained? Let's just look into it. No, so no other top gainers, top gaining major sector. India VIX has cooled down. India VIX has cooled down. Can you see? India VIX is what? India VIX is the volatility index. It shows the fear in the markets, fear for buyers or fear for sellers. Now India VIX has cooled down. This shows that 14,400 can be an immediate support for Nifty 50 इंडेक्स. कल इंडिया विक्स ऊपर था, आज इंडिया विक्स कम है. इंडिया विक्स का रोज का 2.5 से 3% का मूवमेंट आज की डेट में कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है. रोज की डेट में आपको बैंक निफ्टी 800,000 पॉइंट ऊपर नीचे होता हुआ दिख जाएगा. इंडिया विक्स 2 से 3% ऊपर नीचे होता हुआ दिख जाएगा. इट्स वेरी नॉर्मल नाउ डेज सिंस द मार्केट सिचुएशन इज लाइक दैट. Other than that, the losing sector were Nifty Pharma, Nifty small cap, and let's look which were the other losing major sectors. Nifty Auto, Nifty Consumption, Nifty Finance, Nifty Infra, Nifty Metal, Nifty Bank. All other sectors were from the losing sector. So not a very good day for the markets today. Let's look at Nifty 50 index first. Nifty 50 index का मोमेंटम कैसा था आज, इसको हम अभी चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं. So if you look closely here, it is very evident how the levels actually work so beautifully. Let me just zoom into the charts a bit. मैंने आपके साथ मॉर्निंग में ही इंस्टाग्राम पे अपना जो पोस्ट मैं सुबह करता हूं उसमें शेयर कर दिया था कि क्या बाइंग लेवल्स हो सकते हैं और क्या सेलिंग लेवल्स हो सकते हैं. मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज बता दी थी. Look how the index behaved. So सबसे पहला तो गैप अप ओपनिंग हुई इंडेक्स के अंदर. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. या गैप अप ओपनिंग हुई एंड देन इमीडिएट रिजेक्शन एंड उसके बाद हमारे सीपीआर पे आके इंडेक्स ने हॉल्ट किया. क्या आपको यहां पे सीपीआर जोन दिख रहा है? दिस इज द होल सीपीआर जोन, सेंट्रल पाइवट रेंज. ये पूरा जोन सीपीआर है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर. जस्ट गो ऑन टू द चार्ट्स एंड अप्लाई दिस इंडिकेटर. यहां पे सीपीआर जोन से रिजेक्शन लिया, एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल दिखी और उसके बाद कहीं ना कहीं निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ मोमेंटम था इस पूरे जोन के अंदर. यानी 14,619 से 14,619 से लेके 14,671 के बीच में एक रेंज बाउंड सा मोमेंटम था. 14,671 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करी निफ्टी ने, बट 14,700 तक ही जा पाया और वहां से कॉन्स्टेंटली एक रिजेक्शन फेस करता रहा निफ्टी. एंड जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, this was the time around 1 p.m. Where the index completely fell and broke its immediate support of 14,619. तो ये काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी. ठीक निफ्टी की बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी में अपॉर्चुनिटी थी. शॉर्ट करने की मार्केट को हमारा टारगेट होना चाहिए था इस लेवल से लेकर ये सीपीआर का सेंट्रल क्वेश्चन, और ये पूरा टारगेट इजीली अचीव होता. पॉइंट नंबर 1. और उसके बाद जब ये सेंट्रल क्वेश्चन और 14,576 का इनिशियल सपोर्ट, जो यहां से भी आपको दिख रहा है सपोर्ट था, एक बुलिश कैंडल दिख रही है, इट्स अ हैमर कैंडल. सो यहां पे सपोर्ट था, वो ब्रेक डाउन हो गया इस कैंडल के साथ. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट इजीली हमको 14,500 मिलता था. 14,500. So this was again second time that you could have captured the momentum in Nifty 50 index. फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं कि कल इंडेक्स में किस तरीके का मोमेंटम होने के चांसेस हैं और कल के लिए क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात फिलहाल ये है कि आपका जो इनिशियल सपोर्ट आएगा वो आएगा 14,466 पे. ठीक है, सपोर्ट 1 would be at 14,466 and your next support, the good support will be in 14,400 to 14,415 जोन. ठीक है, ये आपके दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए. रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं. बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा सबसे पहले यहां पे. R1 आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस मिल जाएगा. 14,533 भी एक रेजिस्टेंस है, बट लेट्स से मेजर रेजिस्टेंस. सो R1 is 14,576 and R2 is 14,619. ठीक है, इसके बाद तो वैसे भी इंडेक्स ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था इस लेवल के. सो दिस इज अगेन योर R3. दिस इज योर R3. ये तीनों आपके रेजिस्टेंस एरियाज हो गए, इनको मार्क कर लीजिए. ये तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए और सपोर्ट कहां हो गया? ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए. सो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3. तीनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए. ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो वो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा. हम ये डिस्कस करेंगे कि कल क्या होने के चांसेस हैं. ओके, लेट मी क्विकली डिलीट दीज
drawings and so the chart would be more clear to us. Yes, okay. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कल क्या होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आज क्या हुआ इंडेक्स के अंदर, ठीक है। एक यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने भी सीपीआर पे हॉल्ट किया था सुबह, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं सो दैट यू शुड नो दैट हाउ ब्यूटीफुली द होल सीपीआर थिंग वर्क, सॉरी सीपीआर पे बोल रहा हूं, सपोर्ट पे हॉल्ट किया था सुबह। 32,547 का सपोर्ट था, क्या आपको दिख रहा है कितनी ब्यूटीफुली यहां पे सपोर्ट रिस्पेक्ट हुआ है, और उसके बाद 32,974 का रेजिस्टेंस यहां पे कितनी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुआ है। सो आई हैव जस्ट टोल्ड दिस इन दिस वीडियो क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है दैट लेवल्स वर्क very beautifully my friend. All you have to do is mark these levels on your charts and you'll be good to go. कल के लिए बात कर लेते हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ओके, लेट मी just move the charts a little up. Okay. कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर हम बात करें lot of resistances on the upside. Okay, lot of resistance on the upside. सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें 32,547 फर्स्ट बिग रेजिस्टेंस, 32,547 फर्स्ट बिग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस इज 32,800, दिस इज योर नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस। ओके, ये भी एक रेजिस्टेंस है 32,652, बट अगर 32,547 ब्रेकआउट होता है तो आपको यहां तक तो इजीली जाता हुआ दिख सकता है इंडेक्स। सो आई विल से दैट दिस होल जोन इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस, दिस 100 पॉइंट जोन इज अ रेजिस्टेंस। यहां पे अगर इंडेक्स आता है तो आपको थोड़ा सा साइडवेज मूव करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद दो चांसेस बनते हैं कि यदि साइडवेज मोमेंटम इस जगह पे है तो या तो इंडेक्स यहां से नीचे आ जाएगा और सपोर्ट पे जाएगा, या अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे अगर साइडवेज के बाद ब्रेकआउट हो जाएगा तो 32,800 वाले रेजिस्टेंस पे जाएगा। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी इफ देयर इज गैप अप ओपनिंग और एनी बुलिश मोमेंटम इन द इंडेक्स टुमारो। सपोर्ट की बात कर लें, रेजिस्टेंस हमने देख लिए क्या है, R1, R2 एंड R3, और सपोर्ट की अगर हम बात कर लें सो सपोर्ट 1 इज राइट हेयर, दैट इज 32,152। 32,000 का जोन जब तक अच्छा सपोर्ट दे रहा है तब तक ठीक है। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो मैं आपको बताता हूं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में कि इंडेक्स कहां तक गिर सकता है। 15 मिनट चार्ट हमने लगा लिए हैं। 15 मिनट चार्ट्स को जब आप देखेंगे तो आपको बड़े क्लियरली ये दिख जाएगा। लेट मी जस्ट डिलीट दिस। ओके, 15 मिनट चार्ट्स पे आपको ये बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि अगर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो है, ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्यों दिख रहा है आपको, यहां प्रीवियसली भी सपोर्ट ले चुका है मार्केट। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास सपोर्ट 1 जो आएगा वो सीधे 31,833 पे आएगा, सपोर्ट 2 यहां पे आएगा, और अगर सपोर्ट 2 भी गया तो आप मान के चलिए कि 31,313 तक का आपको इजीली मौका मिलेगा मार्केट को शॉर्ट करने का। ओके, सो दिस इज हाउ द इंडेक्स कैन बिहेव फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। मेक श्योर दैट यू मार्क ऑल दीज लेवल्स वेरी क्लियरली ऑन योर चार्ट्स। मैं आपके लिए रोज ये लेवल्स मार्क करके ही इसीलिए रखता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स कौन से हैं। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी हमने इस चीज को देख लिया है। There's a huge bearishness into the market. Can you see that? Huge bearish candles, big bearish candles. कितना बड़ा momentum एक single day के अंदर हुआ है, from 33,000 level to 32,152 level, more than 800 point momentum in one single day on downside. So there's huge bearishness in the markets, my friends. So stay cautious and हर दिन आपको सोच समझ के levels के basis पर ही trading करनी है। मार्केट में आके तुक्का मत लगाइए, नहीं तो आप अपना पूरा कैपिटल खो बैठेंगे। Learn as much as you can and stay disciplined. Work on your psychology. Psychology is the most important aspect of trading because ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। Analysis वीडियोस आप रोज देखते ही होंगे, बट साइकोलॉजी पे अगर आप वर्क कर लेंगे तो आपके जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ट्रेडिंग फैमिली के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, जिनको आप अवेयर कराना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की पावर से। ओके, सो दिस इज उत्कर्ष भार्गव, यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।